Hello and welcome to this beautiful journey of podcast series with alumni of Chitkara University, which is specially curated for the students of Chitkara University currently studying or probably pass outs from here, जो experiences उस time आज के alumni ने एक्सपीरियंस किए फेस किए और आज के स्टूडेंट्स जो फेस कर रहे हैं क्यों ना उन मेमोरीज को रिकॉल किया जाए और उन मेमोरीज के साथ आज के एक्सपीरियंसेस को रिलेट किया जाए. इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी एंगेजिंग डिस्कशन. एंड जो आज हमारे साथ आपके चितकारा यूनिवर्सिटी के एल्यूमिनाई हैं, हिज नेम इज़ मिस्टर आशीष वर्मा. He was from 2002 batch. He took admission in 2002, passed out in 2006, and he was from computer science engineering. After passing out, he worked with amazing big brands like Vodafone, Mahindra, and later on, he joined a company in which he's currently working as, that's Varroc Engineering. एंड ये कंपनी डील करती है इंफोटेनमेंट सिस्टम्स के साथ एंड डैश कैम्स के साथ. इट्स समथिंग वेरी वेरी इंटरेस्टिंग दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. एंड हिज हॉबीज, डफली बजाते हैं, बहुत अच्छा गाते हैं. सो इट इज़ गोइंग टू बी फन टॉकिंग टू मिस्टर आशीष. लेट्स वेलकम हिम फर्स्ट टू दिस पॉडकास्ट सीरीज फॉर एलुमिनाई एंड लेट्स टेक द डिस्कशंस फर्दर. आशीष जी, वेलकम टू चितकारा यूनिवर्सिटी वंस अगेन. Thank you so much, sir. Thank you so much, Chitkara Alumni Network. Thank you so much, Madhu Chitkara ma'am and Harkiran ma'am, taking this wonderful initiative. I am back at college campus after 18 years of graduating. And it was wonderful. It gave me goosebumps because I could see that the brand and the name, what we hear from people that has grown a lot in these years, has also grown in number of courses offered at the campus, the number of students that I now see at the college campus, because in 2002, we were approximately 200 of us when we started the journey. And today I'm told that 13,000 students are hostelers here. Okay, so thank you so much for inviting. नो, इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर. एंड यू नो, आपकी पहली स्टेटमेंट में ही कुछ एक्साइटिंग सी चीज़ मुझे सुनने को मिल गई है. क्योंकि जब आपने एडमिशन ली, इट वाज अ कॉलेज, वो मुंह पे हमारे वही बात चढ़ी हुई होती है. एंड यू सेड आई एम बैक टू द कॉलेज कैंपस. Yes. इट इज़ नो मोर अ कॉलेज, Yeah. इट्स अ यूनिवर्सिटी. Yes. इट्स वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज अराउंड. Yes. राइट. एंड transition from college to university now. You were here 18 years ago. Yeah. You are back here to Chitkara University. What are the changes that you see here now? Oh, as I just said, we have more space, we have more buildings. I see more courses offered. I see pretty new, deans, their names. They've all probably, not much, but then more of them have changed. So it's really exciting to be back at the campus, because earlier it was like every day that you have to come and sit in the classes at around 8:30 a.m. every morning. Yeah. And after 18 years, you are welcomed at the campus. And Harkiran ma'am said, thank you, you have come as an alumni. So there are many changes, and you go down in the memory lane. It also makes you emotional. Yes. And it also gives you goosebumps. And you also thank this college. What you were in 2006, you grew up to what you are today. Yes. And still we are learning. So there are a lot of changes, positive changes in me as well as in the college university campus. Yes, university that I see. campus. And I don't think there can be anything more beautiful going down the memory lane than looking at your own photograph Yeah. at the entrance. Yes. How did it feel? Oh, I would again use the term goosebumps. It was a very, very happy surprise for me. Uh, Back in the day, we used to represent college in inter-college festivals. And with God's grace, we had a wonderful Bhangra team, we had a wonderful cultural team. I was part of those teams which were led by Harkiran ma'am back then. We used to go to different colleges and win accolades for the university, college. Yes. In those times. We used to see our names and also those photographs and also those prizes kept there, but then we were the students. But when you realize that college campus still has a photograph after 18 years of you graduating from this place, so then I feel that the love is mutual.
it is not just as a student you have that love, but you also see as the administration of the college has also kept the history forever green. Of course, the respect, the emotions, they are Yes. all bilateral. Yes. Amazing. So what you give is what you take, and of course you gave a lot of respect to the university campus, to the staff members, and that's what you are getting back now. Yes. So that's the circle of life. Yes. So take us through your journey after you passed out from Chitkara University. There are a lot of memories of university जो अभी हम आपसे और भी पूछेंगे. But now it is important to discuss your profile so that students who are listening, who are watching right now, they should know the kind of hard work that you put in to be what you are today. So you passed out in 2006. Yes, sir. Take us through your journey after that. You have worked with Vodafone, you have worked with Mahindra, multiple Yes. other companies, and now you are head of sales Yes. at Varroc Engineering. Yes. And again, it's a huge name. It's a big name. So Yes. take us through your journey in this professional career. Okay. So back in 2002, sir, I joined Chitkara Institute of Engineering and Technology. Yeah. And we are still referred to as the pioneer batch. In 2006, I graduated as a computer science engineer, and we took an oath of being an engineer in 2006. From campus, I was placed in HCL Infosystems. But then I got a call from my professor, Lalit ji, that Ashish, I am working in a company called Datacraft Engineering, which is a South African company. Would you want to come and join me in Chandigarh? So I said, okay, because we had a relationship and we knew each other and he would be my boss. So I thought, let's join him. So Infosystems was kept aside, but then I joined Datacraft Engineering as a network engineer. In 6 months span, I grew myself 2 levels in hierarchy and became a resource controller who would control the employees or manage the employees pan states, which was Jammu, Kashmir, Punjab, Haryana. So you can call it the North. Yeah. So it was in 6 months' time. Okay. And then after working in that organization for 1 year and 2 months, I somehow thought MBA is required. I took MBA exams. Then I did my MBA 2-year full-time from JP Business School. We refer to as JB Business School in Noida. So 2 years of MBA. Again, campus hired in HCL Technologies. Okay. As the fate would have it, I would take salary from HCL only. So I worked in HCL for 2 years, 2010 to 2012. HCL gave me the opportunity to work in some great projects in JP Morgan, Mumbai, Bombardier, which is a auto plane manufacturer. So 2 years, then I moved to Tech Mahindra. Tech Mahindra, 3.5 years. Beautiful journey at Tech Mahindra because there's a program called Achievers in the Making of the Mahindra Group, led by Mr. Krishna Gopal in Tech Mahindra. And the wish of that program was to nurture sales guys. So I was a technical guy before this. As soon as I joined Tech Mahindra, they wanted to nurture sales people who could take global roles. 6 months of residential course in Hinjewadi campus, Pune, Tech Mahindra. Again, I became a student. After graduating from the 6 months course, I got an opportunity to work as an EA to Mr. C.P. Gurnani, who was the then CEO of Tech Mahindra. Then, I worked in Tech Mahindra for 4 years. Then I moved to an organization called Eris Communications. So, the thing जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस दिन मैंने graduate किया college से, मुझे मेरे teacher ने कहा मेरे साथ आजा. जब मैंने MBA किया, मेरे डीन ने मेरी हेल्प की और मुझे कहा कि HCL ज्वाइन कर आउट ऑफ द 2 दैट यू हैव. जब मैंने वहाँ से मूव किया HCL से, मेरे पुराने बॉस ने मुझे टेकएम पुल किया. जब मैं टेकएम से मूव किया, मिस्टर डॉक्टर ऋषि मोहन भटनागर जो टेकएम में टेक महिंद्रा मेरे बॉस थे, उन्होंने कहा देयर इज़ अ न्यू स्टार्टअप कैप्टिव कमिंग टू इंडिया कॉल्ड एरिस कम्युनिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड. He was going to head that company. So we worked there. Started the organization right from purchasing a chair to getting a legal entity and then initiating a business. So that was basically into IoT, Internet of Things and machine-to-machine communication. I worked there for good 5 years. Okay. And then again, my boss said I'm moving to Vodafone. So it is all about relationship and how we nurture that relationship. I moved to Vodafone. Vodafone say in 2020 to 24,
I worked in Vodafone as general manager and head of IoT and M2M solutions. Now, recently, in 2024, I've joined Varroc Engineering. Varroc Engineering is into manufacturing of automobile component parts. It is number one ancillary manufacturer. Approximately $1 billion India-grown company. Okay. And I am heading the sales for ADAS and car infotainment systems at Varroc. So this is about me. Amazing. So tell me one thing. So you did computer science engineering from 2002 to 2006, and we are talking about those years when there was no smartphone, there was no internet, Yeah. right? And now suddenly you are working with those things which are completely based on AI, internet, and you're repeating these words, Internet of Things, IoT. yeah. So how industry ready were you when you passed out from Chitkara University back in 2006? I believe in my career that the basics are very important. We used to learn about microprocessors 8085 back then. But believe you me, today we are talking about generations of 8085 to where we are today. That, we are talking about Internet of Things and machine-to-machine communication, where two machines are talking to each other and finally giving you some data to interpret and giving you some meaningful business data so that you can use and, increase your profitability and decrease the revenue leakages, etc. So, as you said, there were no smartphones, but there were microprocessors. Yeah. Even in today, when you're using the best of the smartphones, they are based off microprocessors only. Hence, basics will never change. 2 2s are 4 will never change. It is only when you use them in theorems, later then you use them in your practical life. The evolvement is there. You keep on learning. You have to keep yourself updated. You keep on doing those courses. But then to answer your question, right from basics, we were ready. College administration and teachers made sure that wherever we are talking to and sitting in an interview back then, because that was the main thing, that you gain knowledge and you become an employable resource in the industry. So we were employable. And of course, then it is about keep on learning and keep on evolving. But that's a very important statement, that basics will never change. Will never change. Because there are a lot of things whenever we pass out from the campus, from any course, there are a lot of things that we need to learn according to industry. Yes. But then that's a very important statement that everyone should remember, that basics will never change. Of course, we have to evolve. Of course, we have to learn a lot. Yes. But then everything is based on basics only. Yes. So now that we are talking about the courses and your 2002 to 2006 days, tell us something about your hobbies. So padhna to padha hi tha. You were in engineering, you had to complete engineering, but along with those academics, what were your hobbies? As I said, we were part of the cultural committee back then as students, and we had a very small band because we were the pioneer batch. The resources that we could use, we used them to the maximum potential. So we had a small band in college, and I used to sing and represent college in different university campus events. And singing has always been my passion. And so far, it is also to be said that I still pursue my singing. I have my own YouTube channel. Okay. I am pursuing it professionally as well, apart from the professional life that I have. So that is something जिसके बिना अब हम आपको जानने तो देंगे नहीं. So you already have your Duffly with you. Yeah. So let's just hear from you. So कुछ गा के क्यों ना सुनाया जाए सब students को. Sure. So you like to sing in Punjabi, Hindi? Yeah, I can sing in Punjabi and Hindi, but I will recite few lines from Satinder Sartaaj ji song, so that वो जो memory की बात हो रही है उसके ऊपर मैं आपको 2 लाइनें सुनाऊंगा. Let's consider it a beginning, because there are more that we are going to hear from you. Sure. Please. ਕਦੇ ਪਿਪਲਾਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੀ ਪੀਪਣੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਕਦੇ ਖੜ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਣੀ, ਹੁਣ ਨਗਮੇ ਸਾਰੰਗੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਠੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦਿਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕਠੋਰ ਹੋ ਗਿਆ.
सो अभी तक मैंने सिर्फ आपकी तारीफ सुनी थी यहाँ पे आने से पहले कि ही सिंग्स वेल एज वेल, बट नाउ यस आई डोंट रियली वांट टू आस्क मोर क्वेश्चंस, आई वांट टू आस्क यू टू सिंग अ few more songs. Sure, sure. Okay, so yes, we'll take on the singing ahead, right? But yes, ये singing का जो passion है, इसे अक्सर पैशन ही सोचा जाता है। तो अलॉन्ग विद स्टडिंग इन स्कूल कॉलेजेस, जितने भी ये टैलेंट वाली जो चीज़ें रहती हैं, इनको कभी प्रोफेशनली परस्यू करने के लिए तो हमें गाइडेंस मिल नहीं पाती है। दिस इज़ समथिंग जो साथ साथ में हम करते रहते हैं, प्रोफेशन बन जाए तो बन जाए, अदरवाइज पैशन बन के तो हमेशा साथ रहता है। सो यू आर सेइंग यू डू अ लॉट ऑफ सिंगिंग ऑन यूट्यूब, प्रोफेशनली भी कंसिडर किया जा सकता है इसको। सो व्हाई नॉट अ फुल टाइम सिंगर व्हेन यू सिंग सो वेल, नाउ दैट आई हैव सीन यू सिंगिंग? Thank you. See, what I have noticed in my life is that passion keeps on motivating you to do something, or you move an extra mile in life. I'll tell you how. जब आप जॉब, स्पेशली इन सेल्स, एक नेटवर्क क्रिएट करते हैं, एक रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं, वहाँ पर आपकी जो भी हॉबी या पैशन होता है ना, इट हेल्प्स यू टू कनेक्ट विद योर कस्टमर्स एंड क्लाइंट्स मोर डियरली. Yeah. So I've met many of my customers who said, अरे मैंने आपको YouTube पे देखा, और मेरी बेटी भी सिंगिंग करती है, और वो भी 8 साल की है, वो कोचिंग कर रही है. Then you actually become closer to your customers, and when you are closer to your customers, of course, then win in a deal is always that you can look for. तो कभी भी मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये दो अलग अलग चीज़ें हैं, क्योंकि वो मेरे इधर भी काम आ रही है इन माई प्रोफेशनल लाइफ, और प्रोफेशनल लाइफ से मेरे इधर भी काम आ रही है, बिकॉज देन इट इज़ ऑल्सो नॉट जस्ट टाइम कंज्यूमिंग बट ऑल्सो मनी कंज्यूमिंग एज अ हॉबी, इफ यू वॉन्ट टू परस्यू इट. सो माई जॉब फंड्स माई पैशन, माई पैशन हेल्प्स मी इन माई जॉब. So that is why I'm trying to maintain the balance between the both. Amazing, and you are sharing your thoughts so clearly with so much of transparency. सीधा दिल से सारी बातें आप शेयर कर रहे हो. बहुत सी ऐसी कॉलेज की मेमोरीज होंगी जो उस टाइम पे भी शरारतें करते थे, आज भी शरारतें हो रही हैं, तो क्यों ना कुछ वैसे लाइट मोमेंट्स भी इस टाइम पे शेयर किए जाएं बिफोर वी टेक ऑन द डिस्कशन टू सम सीरियस नोट, राइट? सो कुछ लाइट मोमेंट्स, कुछ मेमोरीज, कोई बंक मारते पकड़े गए हो, लेट पहुंच रहे हो, एनीथिंग लाइक दैट? तो पहले तो मैं वो बताना चाहूँगा जो कभी हमने कॉलेज लाइफ में बताया नहीं. हम बच्चे आपस में इसे चितकारा स्कूल बोलते थे, कभी कॉलेज नहीं बोला, बिकॉज तब खैर कॉलेज था. व्हाट वाज द रीजन फॉर दैट? हाँ, क्योंकि 9 बजे सुबह मेन गेट बंद हो जाता था, आपको कोई एग्जिट की कोई चांस नहीं था. 12 बजे, 12:30 बजे ही कैंटीन खुलती थी जब लंच होता था. 2 बजे कैंटीन लॉक हो जाती, तो आप बिटवीन योर क्लासेस यू कुडंट एक्चुअली बंक एंड गो टू कैंटीन एंड सिट एंड हैव अ समोसा. बिल्कुल स्कूल. उसके बाद 4, 4:30 बजे के मेन गेट खुलता था, और वहीं उसके बाहर बसेस लगी होती थी, और आपको सीधा जाके बसेस में बैठना है और आपने वापस जाना है. इस तरह का माहौल होता था. और आपने जो बंक की बात बोल दी, ये तो इम्पॉसिबल था, क्योंकि उस समय इफ़ आई कैन रिमेंबर इट करेक्टली, मधु चितकारा मैम के पास, डॉक्टर मधु चितकारा मैम के पास एक वाइट लेंसर होती थी कार, 108 नंबर. सी आई स्टिल रिमेंबर. आप खौफ समझ सकते हैं इस चीज़ का. 108 नंबर वाइट लेंसर. हमें पता लग जाता था मेन गेट से आ गई है ये लेंसर, तो अगर आप कहीं बाहर देख भी रहे हो विंडो से, तो आपको सीधा ही देखना है. अब आप बाहर इधर उधर भी नहीं देख सकते. तो इस तरह का माहौल था. उसके बाद अगर आप लेट भी हैं और आपने आज ऐसा कुछ बंक का सोच भी लिया, तब यहाँ पे बस स्टॉप नहीं था, जो PRTC या जो बसेस थी, और यहाँ पे कोई रुकता भी नहीं था. तो ज़्यादा से ज़्यादा एक गिल ढाबा होता था उधर. तो आपको भूख लगी है 12 बजे तक, तो आप कुछ खा नहीं सकते बिकॉज वो लॉक है. हाँ, तो आपको भूख लगी, आप कहाँ जाओगे? आप गिल ढाबा जाओगे. लेकिन ना वही लेंसर 108 नंबर वहाँ पे भी आ जाती थी. तो पता था एक ही जगह जहाँ तो पे बंक मार एक के ही जा जगह सकते जा हो. सकता है कोई, और वो वहाँ भी आ जाती थी. और जब वो लेंसर वहाँ भी दिख जाती थी, तो वहाँ से भी भाग के जाओगे कहाँ? तो फिर सर उस समय फ़ोन्स नहीं होते थे, 2002 में मोबाइल नहीं थे, तो घर पे ना एक लेटर आती थी कि योर वार्ड हैज़ बीन सीन ब्रेकिंग द रूल्स ऑफ द कॉलेज. और 1 हफ्ता 2 हफ्ते वो, उसके बाद नोटिस बोर्ड पे भी नाम लग जाता था कि आप अच्छी एडवर्टीजमेंट बाकियों को भी पता लग जाए, ये वो 4 हैं जो 1 हफ्ते के लिए अब आपको शायद नहीं दिखेंगे, और ये कारण है. तो हम एक, ये तो मेमोरी है. लेकिन अच्छी मेमोरीज बहुत ज़्यादा हैं. अच्छी मेमोरीज ऐसी
कि बिकॉज वी वर ओनली इन द फर्स्ट ईयर वी वर 180-200 स्टूडेंट्स. आज भी वी आर कनेक्टेड क्योंकि वो इतने ही थे. देयर वाज मैकेनिकल जैसी कोई बात नहीं हमें लगती थी, कंप्यूटर साइंस की कोई नहीं लगती थी, बिकॉज सब एक दूसरे को ऐसे जानते थे कि यू नो वी आर और बैचमेट्स एंड क्लासमेट्स और 180 हैं और सबको नाम से जाना जाता. मुझे नहीं पता आज इस कॉलेज कैंपस में 13,000-20,000 बच्चे एक दूसरे को शायद जानते होंगे या नहीं जानते होंगे. हम 100% एक दूसरे को जानते थे. हमें सबको एक दूसरे की हॉबीज़ पता होती थी. हमें सबको पता होता था ये चंडीगढ़ से आते हैं, ये पटियाला से आते हैं, ये यहाँ पे रहते हैं. तो आज भी हम कनेक्टेड हैं. और देयर आर मैनी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ गोइंग टू डिफरेंट इवेंट्स. देयर आर मैनी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ रिप्रेजेंटिंग आवर यूनिवर्सिटी and winning accolades. So there are many good things that we've achieved while we were in this college campus. It's so good to hear everything that you are speaking right now, because वो जो memories हैं वो अब जो students सुन रहे हैं वो of course relate कर पा रहे होंगे कि उस time पे bunk मारने की जगह नहीं होती थी. आज तो इतनी जगह है शायद ढूंढना मुश्किल हो जाए उनको. और ऊपर से मोबाइल्स आ गए हैं तो मैसेज करके भी बताया जा सकता है Yeah. कि इधर से फ्लाइंग आ रही है, इधर से निकलो. Information sharing Yeah. नहीं होती और थी तो. उस टाइम पे तो कहाँ ही होती थी. हाँ, और हम तो ये भी ऐसा भी करते थे कई बार कि पता भी लग गया ना कि वो बाहर है तो जानबूझ के थोड़ा बताओ भी मत कि मेरे साथ तो हुआ ही है, इसके साथ भी हो जाए. ओके, सो नाउ जो अभी आपने बातें की कि कितना स्ट्रिक्ट रहा करते थे डॉक्टर मधु चितकारा मैम, एंड आई रियली टेक दिस स्ट्रिक्टनेस डिसिप्लिन इन अ वेरी पॉजिटिव वे, बिकॉज जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, उस टाइम पे हमें इतना एक्सपोजर नहीं होता या इतना फिक्र भी नहीं होता कि बाद में क्या होगा. उस टाइम पे कहीं ना कहीं वो कम मैच्योर माइंडसेट होता है जिसमें एन्जॉयमेंट थोड़ी ज़्यादा करने का मन करता है, बट वो डिसिप्लिन बाद में याद आता है हमें. बिल्कुल. सो आई रियली वांट टू डिस्कस दीज थिंग्स विद यू. उस टाइम पे जो डिसिप्लिन आपने एक्सपीरियंस किया, जिस डिसिप्लिन में आपने इंजीनियरिंग की, वो डिसिप्लिन, वो सारी एथिक्स, वैल्यूज़, वो बाद में प्रोफेशनल इंडस्ट्री में कितनी काम आई? थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन, बिकॉज मैंने एक शुरू में बोली थी द बेसिक्स विल नेवर चेंज. हमें यहाँ तक बोला जाता था कॉलेज में, शूज़ पॉलिश नहीं है कॉलेज में, यूनिवर्सिटी कैंपस की मैं बात कर रहा हूँ. हमें उस समय लगता था कि यार क्लास लगाने आए हैं, नॉलेज की बात होगी. और यू नो कई बार जैसे हरकिरण मैम है, योर ट्राउज़र एंड योर सॉक्स शुड बी ऑफ द सेम कलर, कुछ ऐसी बातें. बट देन मैंने आपको एक और बात बताई कि आई हैव बीन वेरी लकी दैट माई बॉसेज हैव कॉल्ड मी टू द जर्नी दैट दे आर डूइंग नेक्स्ट, और मेरे को कभी इंटरव्यू देने की ज़रूरत नहीं पड़ी. ऐसा क्यों होता था? बिकॉज जो बेसिक्स थे ना, टाइम पे आओ, टाइम पे जाओ, काम पूरा करो, पॉलिश्ड रहो, रिस्पेक्ट दो, रिस्पेक्ट लो, वो सारी चीज़ें यहीं से इम्बाइब, यही वो जगह जहाँ पे वो बेसिक्स दिए गए. और आज जब हम किसी से बताते हैं कि हम इस सर के साथ काम कर रहे हैं फ्रॉम माय अर्लियर डेज, और वो भी इस बात को मानते हैं कि डिसिप्लिन इस लड़के में था, तो हमने कहा कि चलो आगे बढ़ते हैं. बेसिक्स विल नेवर चेंज एंड दोज बेसिक्स विल ऑलवेज टेक यू वेयर एवर यू वांट टू बी. तो स्ट्रिक्टनेस और डिसिप्लिन आज भी काम आ रहा है. एग्जैक्टली. तो जो उस टाइम पे लगता था कि वो लेंसर हमें कहीं ना कहीं पकड़ ना ले, आज उसी लेंसर का थैंक्स. एक लाइटर नोट पे और बात बताऊं. या मुझे सुबह मैसेज आया कल शाम को, द कैब विल पिक यू एट 8:30. सर मैं 8:29 पे बाहर था. मैंने कहा अगर आज मैं 1 मिनट भी लेट हुआ तो मैं क्या मुंह दिखाऊंगा कि अभी भी नहीं समझा. तो मैं 8:30 कैब में था एंड वी स्टार्टेड. तो ये ऐसा डिसिप्लिन है सर. ऐसा डिसिप्लिन है. बट Imbibe द गुड किया है. थिंग इज आपने उस डिसिप्लिन को पॉजिटिवली लिया भी, और आज हम उस चीज़ को याद करते हैं तो उसको पॉजिटिव साइड पे ही याद करते हैं. ओके, सो मूविंग फर्दर, टेल मी वन मोर थिंग. वी आर गोइंग टू डिस्कस 2 थिंग्स राइट नाउ. वो कॉलेज के दिन और आज के ऑफिस के दिन. कॉलेज के टाइम पे कभी कॉलेज में लेट आए थे? कभी लेट हो गए हो, 9 बजे गेट बंद हो गया बाद में? नहीं सर, उसके पीछे रीज़न है. हम पटियाला रहते थे. मैं अपने पेरेंट्स के साथ पटियाला था जब हम कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे. तो हमें बस पिक करती थी और बस ही ड्रॉप करती थी. और मेजॉरिटी हमारे, बिकॉज उस समय फर्स्ट ईयर में हॉस्टल नहीं था कैंपस पे, तो जितने भी, चाहे वो राजपुरा से आ रहे हैं, चाहे वो इवन जो हॉस्टल था, आई एम सॉरी मेरे को याद आ गया, जो हॉस्टल था वो चंडीगढ़ में था, शायद 8 सेक्टर और 19 सेक्टर में हॉस्टल था, जो आउट स्टेशन बचे थे तब वो भी बस में ही आते थे. देयर वाज नेवर अ चांस कि आप लेट हो. आप एब्सेंट हो सकते हो, लेकिन आप लेट नहीं हो सकते, क्योंकि आना आपको कॉलेज बस में है, जाना आपको कॉलेज बस में है.
तो सर मैं आपको इसके ऊपर कोई ज़्यादा कहानी बता नहीं सकता. नो प्रॉब्लम एट ऑल. अभी आस्किंग द सेम क्वेश्चन रिलेटेड टू द करंट जनरेशन. सो अभी आपके पास बहुत से आज के जेन जी के यंगस्टर्स भी आते होंगे जॉब करने के लिए. यू हैव डेल्ट विद यंगस्टर्स विद डिफरेंट प्रोफेशनल्स इन लास्ट 18 18 years, years. फॉर पास्ट 18 years. सो उस टाइम पे जो डिसिप्लिन आपके अंदर था या आपकी जनरेशन में था और आज की जनरेशन जब आ रही है, इज देयर एनी डिफरेंस दैट यू फील? सर एक हमने पढ़ा था ना डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन एंड ओनली द बेटर सर्वाइव. तो बेटर है. हम जब 2006 में जितने मैच्योर्ड थे, शायद अब लोग ज़्यादा बच्चे वो मैच्योर्ड हैं. हम जितने टेक्निकली साउंड थे, शायद आज की जनरेशन टेक्निकली इवन मोर साउंड है. हमारी जो लर्निंग कैपेबिलिटी उस समय हमें लगता था, मैं अब देखता हूँ कि ग्रासिंग पावर आज की जनरेशन में ज़्यादा है. एंड एक सबसे बड़ी जो बात मुझे आज की जनरेशन में लगती है, दी एबिलिटी टू अनलर्न. शायद हमारे बेसिक्स में हमें, जब मैं बहुत छोटा था, क्रैमिंग होती थी, है ना. अब इवन आई हैव 2 daughters, तो अब मैं देखता हूँ कि जो उनके बेसिक्स हैं वो सब प्रोसेस रिलेटेड हैं, वो सब वेल थॉट ऑफ, इन्होंने सिखाया ही वैसे जाता है दैट वाई पास्ट कॉन्टीन्यूअस, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस, AEIOU में क्या होता है. मतलब अभी वो छोटे हैं, लेकिन हमें शायद जब मैं छोटा था, मुझे जितना याद है, वॉवल क्या है, ये है. वॉवल से पहले एन आता है, पर कईयों के आगे नहीं आता. किसके आगे, वो हमें तब रट्टा था, हम क्रैम करते थे. तो हमारी क्रैमिंग की वजह से एबिलिटी टू अनलर्न ना, ये मैं पर्सनल नोट पे बता रहा हूँ, हो सकता है कि मेरे साथ वालों के मेरे से ओपिनियन थोड़ा डिफरेंट हो, तो अनलर्न की कैपेबिलिटी क्रैमिंग की वजह से थोड़ी कम हो जाती है. आज की जनरेशन, दे लर्न, दे अनलर्न, दे रीलर्न, बहुत क्विक है, दे बेटर. सो ये जो सोशल मीडिया या इंटरनेट के स्मार्टफोन्स के आने से कई बार फिक्र किया जाता है कि यंगस्टर्स के लिए डिस्ट्रैक्ट होने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट एट द सेम टाइम यू आर टेकिंग इट ऑन अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइड, वेरी पॉजिटिव नोट, कि उसी इंटरनेट का बहुत बेनिफिट भी है. बहुत benefit. स्टूडेंट्स को एक्सपोजर ज़्यादा मिल रहा है एंड दे आर गेटिंग मैच्योर बहुत जल्दी, बिल्कुल. जिसकी वजह से लर्निंग ईजी हो पा रही है. कोई भी इंटरव्यू देने के लिए वो जा रहे हो, आप ही के पास आ रहे हो, तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट दे कैन लर्न राइट अवे ऑन द स्पॉट. एग्जाम्पल पॉसिबल नहीं था. एग्जाम्पल दूं. श्योर. सपोज कीजिए आप, अब जैसे मेरी बेटी 4th में है, मैंने उसे बोला न्यूज़ आ रही है इसरो, चंद्रयान. अब जब आप और मैं उस एज में थे, 4th, 8 years old, 9 years old, अब हमें अगर बुक में कहीं इसरो पढ़ लिया तो हमारे को पता लग गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एक ऑफिस है. उस एज की मैं बात कर रहा हूँ. लेकिन आज की जनरेशन मेरी वेट नहीं कर रही. उनको मालूम है कि आईपैड है, मुझे गूगल पे इसरो लिखना है और मुझे पता लग गया. चंद्रयान 3 क्यों है, चंद्रयान 2 क्यों है, 1 के साथ क्या हुआ, वो पढ़ते हैं. हमें शायद लाइब्रेरी जाना पड़ता, इवन कॉलेज में भी हमें शायद तब लाइब्रेरी जाना पड़ता, और हो सकता है रास्ते में मुझे मुबारक जी मिल गए, उन्होंने कहा आजा समोसा खाएं, तो वो निकल गया, और जो मैं करने गया था वो भूल गया. पर अब आप और मैं बात कर रहे हैं, आपने इन्फोटेनमेंट की बात की, मैं फटाफट से देखूंगा कि ये इन्फोटेनमेंट क्या है. फिर आपको पता लगेगा अरे ये तो स्टीरियो ही है. लेकिन फिर आप देखोगे ये स्टीरियो नहीं है, ये तो कनेक्टेड कार है. तो कनेक्टेड कार क्या होता है? तो आप विद द एवोल्यूशन इन टेक्नोलॉजी, ये लर्निंग बड़ी ईजी हो गई. और अगर मैं पॉजिटिव चीज़ों की बात करूं, तो ये जो ईज़ है लर्निंग की, ये हमें और ज़्यादा ग्रो कर रही है, बट द पॉजिटिव. Amazing. So these are some of the insights which are definitely going to be of a lot of help for the students who are watching, who are listening this podcast, this episode right now. So ये बातचीत हम कर रहे हैं चितकारा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए. Primarily that is my focus, you know, कि आपके साथ वो discussions की जाएं. Being an alumni of Chitkara University, what do you think students should prepare themselves with apart from the curriculum that they are following right now? जो study कर रहे हैं वो तो करनी ही करनी है, बट उसके अलावा अपने आप को इंडस्ट्री के हिसाब से, आज के ज़माने के हिसाब से ग्रो करने के लिए, इवॉल्व करने के लिए, व्हाट आर द थिंग्स दैट यू थिंक उनको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए? ओके, मैं इसको भी रिलेट करूँगा. एक पी चिदम्बरम जी ने बात बोली थी कि इंडिया में हम पॉपुलेशन नहीं बोलते, अब हम इंडिया में ह्यूमन रिसोर्स बोला करेंगे, क्योंकि हमेशा ग्लोबली वी वर रेफर टू एज वन ऑफ द हाईएस्ट पॉपुलेटेड कंट्री. तो उन्होंने थोड़ा सा चेंज किया, बिकॉज थॉट से पूरा देश बदलता है, कि वी आर
हाईएस्ट इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। फिर उसके बाद इन्फोसिस के फाउंडर जी ने एक बात बोली कि वी नीड इन इंडिया नॉट जस्ट ह्यूमन रिसोर्स, एंड आफ्टर सेवरल ईयर्स फ्रॉम व्हाट चिदम्बरम जी सेड, दैट वी इन इंडिया नाउ फ्रॉम ह्यूमन रिसोर्स नीड एम्प्लॉयबल रिसोर्स। तो अब बहुत इंजीनियर्स शायद हर साल ग्रेजुएट कर रहे हैं, बहुत MBAs शायद हर साल ग्रेजुएट कर रहे हैं। आपको एम्प्लॉयबल बनना है Yeah. और आपको सिर्फ इंजीनियर नहीं बनना। अब एम्प्लॉयबिलिटी कैसे आती है? एम्प्लॉयबिलिटी में हमें समझना पड़ेगा दैट द चेंज और एवोल्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी, अर्लियर जो एक पहले इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1 आई, उसके 20 साल के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 2 आई, फिर उसके 10 साल बाद 3 आई, फिर 5 साल के बाद IoT रेवोल्यूशन आ गई, उसके 2.5 साल बाद ही अब AI रेवोल्यूशन आ गई। आप देख रहे हैं कि हर रेवोल्यूशन कैसे हाफ टाइम में हो रहा है। Yes. तो इसी तरीके से अब अगली जो रेवोल्यूशन है शायद 1.25 साल में आ जाएगी, मतलब इसकी तरह वो बढ़ती रहेगी। सो व्हाट वी आर सेइंग इज दैट द चेंज विच वाज अर्लियर इनएविटेबल इज नाउ नॉट जस्ट कांस्टेंट बट आल्सो वेरी क्विक। Yeah. So therefore, what AI today is doing is basically helping the industry to do more work in lesser time, lesser resources, and lesser money, increasing the profitability. So therefore, now you don't just have to be an engineer. You have to make sure that you are that employable resource who is working on that AI. I'm only talking about IT or I'm only talking about manufacturing right now. Please इसको relate कर लेंगे हम, Yeah. but then do not think कि ये सिर्फ इसी के लिए है. So IT, IoT हम जो भी कर रहे हैं, how AI में we are getting ourselves fit into it and becoming employable for an organization like Infosys or HCL or Tech Mahindra or Mahindra and Mahindra. तो that learning needs to continue. हमारे टाइम पे we actually had to go to some college campus, some university campus, लेकिन आज you also have those online courses. Even अगर आप LinkedIn पे भी हैं, you would see that LinkedIn is also offering courses, upgrade हैं, there are many. तो I think the investment for a kid or a student should be in himself, in books, in certifications. कोई रिज्यूमे मेरे पास आता है, उस पर लिखा है आशीष वर्मा, BTech, MBA, हॉबी, तो मुझे शायद देख के लगेगा कि कोर्सेज कहाँ हैं। मैं क्यों देख रहा हूँ वो? मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि क्या ये अनलर्न करेगा, क्या इसमें लर्निंग कैपेबिलिटी है, क्या ये अपने आप को इवॉल्व किया है आज तक इसने। अगर मैं वही देखता हूँ, मुबारक, MBA, BTech, कोर्सेज, सर्टिफिकेशंस अगर वो किए हैं तो मुझे पता है कि मैं आशीष शायद मेरे लिए सेकंड ओपिनियन हो जाएगा, Yeah. पहली प्रेफरेंस मुबारक हो जाएगी। तो यही एम्प्लॉयबल रिसोर्स है मेरे लिए, यही एम्प्लॉयबल रिसोर्स है इंडस्ट्री के लिए। इस तरह से मुझे लगता है यू कैन, इफ़ यू आर अ स्टूडेंट, यू शुड कीप ऑन शोकेसिंग सर्टिफिकेशंस इन योर रिज्यूमे, ऑन योर लिंक्डइन, करना चाहिए। Perfect. So last couple of questions before we wind up the show. Sure. So अभी आपने resume का जिक्र किया and what sort of extra things can be added in a resume जिससे resume आपका extraordinary feel हो. So you are there as head of sales right now. इंडस्ट्री का बहुत एक्सपीरियंस है, आपने बहुत सारे रिक्रूटमेंट्स के प्रोसेसेस के थ्रू गए होंगे, देखे होंगे आपने. सो tell me a few things, or not just me, tell the students a few things which should definitely be there in their resume, you know, जिससे वो हाईलाइट हो उनकी प्रोफाइल. आज की डेट में एक HR की जॉब निकलती है तो हम सिर्फ 10s या 1000s की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, पता नहीं कितनी प्रोफाइल्स जाती हैं और इतने रेजुमेज कोई देख भी नहीं सकता. सो व्हाट आर द थिंग्स जो आपको स्टैंड अपार्ट करें बाकियों से? देखिए, जब हम स्टूडेंट होते हैं ना तो कई बार आपसे जो बड़े हैं, आपके साथ वाले भी होते हैं, वो आपको बोल देते हैं कि मार्क्स ज़िंदगी में ना इतने मैटर नहीं करते. लेकिन ना मैं अपने करियर में मैंने ये नोटिस किया है कि मार्क्स रिज्यूमे में क्यों लिखते हैं. मार्क्स रिज्यूमे में इसलिए लिखते हैं कि आशीष वर्मा को जब सिर्फ पढ़ने का काम दिया था तो आशीष वर्मा सिर्फ पढ़ाई कितने अच्छे से कर रहा था. क्या वो 80% वाला है, क्या वो 90%? तो आशीष वर्मा की लाइफ के ऊपर अप्रोच समझ आ गई. तो मार्क्स कोई आपको ये नहीं बताते कि आप इंटेलिजेंट कितने हो, आपका IQ कितना है. एज एन एम्प्लॉयर मुझे ये पता लग जाता है कि आशीष वर्मा को जब ये काम दिया था उसके पेरेंट्स ने, तब उसने वो 90% ध्यान से किया. विजिविज
कि आशीष वर्मा 60% वाला है, तो पहला तो मेरा वो ओपिनियन चेंज हो गया। तो मार्क्स तो बच्चों इम्पॉर्टेंट हैं, Yeah. क्योंकि हमें एम्प्लॉयबल बनना है, तो वो तो इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप अपनी हॉबीज़ लिखते हैं तो ये पता लगता है कि आशीष वर्मा 85% वाला है, लेकिन इसकी हॉबीज़ में एक्कोलेट्स भी हैं। इसने लिखा है कि ये इंटर यूनिवर्सिटी गया था, इसने लिखा है ये नेशनल ये खेला था, तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं। दूसरा, जब आप स्पोर्ट्स और कोई और चीज़ लिखते हैं तो एज एन एम्प्लॉयर मुझे ये पता लगता है कि ये फिजिकली एंड मेंटली बैलेंस्ड बंदा है। ये जो काम कर रहा है इसको मालूम है कि हेल्थ भी ज़रूरी है, इसको मालूम है पढ़ाई भी ज़रूरी है। तो मैं अब आपको ये बता रहा हूँ कि एक रिज्यूमे को अ बॉस, एन एम्प्लॉयर और अ मैनेजर वो किस तरह से देखता है या देखना चाहिए। Yeah. ठीक है, तो आपको ये पता लग गया कि इसकी लाइफ में अप्रोच हेल्थ को लेके, लाइफ में अप्रोच मार्क्स को लेके और लाइफ में अप्रोच किसी स्पोर्ट को लेके काफ़ी अच्छी रही है। और इसीलिए मुझे ये पता लगता है कि ये कोचेबल है। अगर आप क्रिकेट लिखा है, अगर आपने वॉलीबॉल लिखा है, अगर आपने सिंगिंग लिखा है, कुछ भी आपने आर्ट लिखा है, तो आपको कोई कोच कर रहा था या आप खुद से भी सीख रहे थे, तो आप कोचेबल है। आप मार्क्स आपके 90% हैं, आपके 80% है, 70%, आप कोचेबल हैं। तो आप लर्निंग एबिलिटी आप में है। तो उसके बाद तो सर मैंने जैसे आपको बताया सर्टिफिकेशंस, वो फेदर इन द कैप Yeah. कि कितने किए हैं, कितने टाइम में किए हैं। तो ये इस तरह से एक एम्प्लॉयर या देखता है या देखना चाहिए किसी एक का रिज्यूमे। Perfect. So, one last question before we hear another song from you. हाँ जी। So, this last question is again related to Chitkara University. So, as an alumni now, एक जो प्यार रहता है, एक रिस्पेक्ट रहती है यूनिवर्सिटी की, हम जहाँ से ऑर्गेनाइजेशन से पढ़े होते हैं, वो आपके अंदर साफ दिखती है। बिकॉज बिफोर वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग, you were talking to ma'am and you said I'm always one call away ma'am, please. Yes. You always, you wait for that moment कि कब चितकारा यूनिवर्सिटी से रिलेटेड मैं कहीं पे काम आ सकूं. Yes. So, is there any possible way या फिर आपके मन में कुछ हो कि this is how I can pay back to the university or your vision for the students of Chitkara University? देखिए, मैंने आपको बताया दैट इन 2016 टू 2020 आई वाज वर्किंग विद द एरिस कम्युनिकेशंस। तो मेरी हरकिरण मैम के साथ बात हुई थी वाइल इन 2018। Okay. तो मैंने मैम को खुद फ़ोन करके ये रिक्वेस्ट किया कि मैम अभी आई हैव 15 ओपनिंग्स जो मुझे ग्रेजुएट ट्रेनिंग लेने हैं। Yeah. ठीक है, और मेरे को ये जिम्मेवारी दी है मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने कि आप किसी भी कैंपस में जा सकते हो, तो इफ़ यू अलाउ तो मैं पहले चितकारा आना चाहता हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है द फर्स्ट थिंग दैट एज यू आर ग्रोइंग इन द हायरार्की, एल्यूमिनाई नेटवर्क से कनेक्ट रहें, जो कि एक बहुत अच्छा नेटवर्क है कैन, इसके साथ कनेक्टेड रहें। और नॉट जस्ट फॉर द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग हियर, बट दैट नेटवर्क इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टुडे। आप अगर आपने हमारी वो वॉल ऑफ फेम Yeah. देखा है, आपने देखा होगा COO मर्स्क, कोई मेजर, कोई स्क्वाड्रन लीडर, वी आर एवरीवेयर टुडे, एंड इफ वी आर समहाउ कनेक्टेड वी कैन ऑल हेल्प ईच अदर इन अवर नेटवर्क एंड मेक श्योर दैट चितकारा यूनिवर्सिटी एज अ नेम एंड एज अ ब्रांड इट कीप्स ऑन शाइनिंग। तो मुझे ऐसा लगता है फॉर एवरी एलुमनाई और एलुमनस इट इज़ इम्पॉर्टेंट, विजिट कैंपस, talk to students, share your opinions and learnings. If you are in a position to hire not just placements but also trainees, हमारे समर इंटर्नशिप होती है, हमारे विंटर इंटर्नशिप होती है, वो तो करवा ही सकता है। आज हम जिस पोजीशन पे सारे लोग बैठे हैं वी कैन ऑल डू दैट, और वो उनको बहुत फ़ायदा करेगा। क्योंकि मैं आपको जब रिज्यूमे बता रहा था तो वहाँ पे रिज्यूमे में जब ये आता है कि मेरी समर इंटर्नशिप से फॉर एग्जांपल किसने लिखा, JP मॉर्गन, ऑफ कोर्स आप एज एन एम्प्लॉयर आप देखोगे, आप कहोगे ये तो वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड इन द बैंकिंग रिटेल बैंकिंग सेगमेंट, तो आप उन्हें पिक करेंगे। तो आई थिंक देर आर लॉट ऑफ वेज टू गिव बैक टू योर एलुमनस। मनी इज ऑलवेज अ वे विच कैन हेल्प एनी वन, Yes. right? So of course if you're in a position in life where even that can be done, you must do it. Give it back to the alumnus and the university. So probably in the coming placement drives, we can see you, hiring students from here. Just a call away. Just a Amazing. call So to end the discussion, I would again request you कि एक और song यहाँ पे गाया जाए, एक या दो, for the students once again, so that on a very musical note we conclude this show of today. Sure, sure.
ये तो मेरे साथ रहती है। Of course, yes. गजल? Why not? ओके। किस वल आखां ओए मजनून, किस वल आखां ओए मजनून, तेरी लैला दिसदी काली वे। मजनू ने जवाब दिता, ओ तेरी अख ना वेखण वाली वे। जे तू वेखे मेरियां अखां नाल, तेरी सुरत ना जाए संभाली वे। वेद भी चिट्टा ते कुरान भी चिट्टी, विच स्याही रख दिती काली वे। हो गुलाम फरीद, जिथे अखियां लगियां, उथे क्या गोरी क्या काली वे। कल 14वीं की रात थी, कल 14वीं की रात थी, शब भर रहा चर्चा तेरा। कल 14वीं की रात थी, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा ये चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। कल 14वीं की रात थी, हम भी वहीं मौजूद थे, हम भी वहीं मौजूद थे। हमसे भी सब पूछा किए, हम हंस दिए, हम चुप रहे, हम हंस दिए, हम चुप रहे। मंजूर था पर्दा तेरा। कल 14वीं की रात थी, कल 14वीं की रात थी। हा 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 हा। Amazing, amazing. Thank you. So now you know, अब मैं वो सब सारी तारीफों को अपने सामने देख पा रहा हूँ जो अरे। आपके यहाँ पे आने से पहले मैंने सुनी थी. Thank you. Amazing. So looking right into the camera, right into the eyes of the students who are watching right now, one last message to the students before we wind up the show. ओके। मेरी लर्निंग, नेवर से नेवर टू एन अपॉर्चुनिटी। बी एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी लाइफ में जब मैंने ग्रोथ एक्सपीरियंस की है, मेरी लाइफ में जब मैंने नेटवर्क क्रिएट किया है, इट हैज़ ऑलवेज बीन बिकॉज किसी ने मुझे इनवाइट किया, मैंने उस इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, मैं एक जगह पे पहुंचा, वहां पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, कॉलेज कैंपस में कोई इवेंट है, प्लीज़ जाइए। इंटर कॉलेज एक्टिविटी हो रही है, प्लीज़ करें। आप कोई कल्चरल में नहीं करना चाहते, टेक्निकल में करना चाहते हैं, लेकिन कॉलेज में कल्चरल हो रहा है, आप प्लीज़ वहाँ जाइए, ऑर्गेनाइज़र बनिए। जहाँ पे आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वहाँ पे आप ऑर्गेनाइज़र बनिए। जहाँ पे आप ऑर्गेनाइज नहीं कर रहे, वहाँ पे आप हेल्प कीजिए। नेटवर्क क्रिएट होगा, रिलेशनशिप बनेंगे। ना मत करिए, हर बार कुछ नया सीखने को मिलेगा, और वो इसी तरह कहीं ना कहीं स्टोरी बनेगी और आपको लाइफ में अच्छा महसूस होगा। Enjoy. Thank you so much, Mr. Ashish, for those very, very motivational words towards the end. Thank you so much. Thank you so much for being here on this podcast series for the alumni of Chitkara University. Thank you, sir. It has been a pleasure. Thank you so It much. was a pleasure to have you here. Thank you so much. Thank you. So that was Mr. Ashish Verma here, an alumni of Chitkara University, and what a positive message he has given towards the end. Say yes to life. Never say no to life, never say no to the opportunities. And from all the experiences that he has shared here today, there's so much to learn. And I really want to say this again, there is nothing to unlearn. Of course, there are things to unlearn in life, but जो बातें आज आशीष जी ने यहाँ पे शेयर की हैं, there's nothing to unlearn, there's a lot to learn. We really hope you learn out of this. We really hope you liked the show, and we really, really hope a very, very bright future for you all. On this very positive note, we say goodbye to today's episode, but not forever. We'll be back in next episode with another alumni of Chitkara University. Till then, take care, you all.